With these words, I think I'll move over to our third panelist for this evening, architect Ashok Goel, who is a renowned educationist and RTI exhibist in India. Architect Ashok Goel, at the age of 16, gave programs on television in Delhi Doordarshan. Later, he wrote plays for Urdu service in the All India Radio. He participated in Akashvani programs, then got distinction in geometrical and mechanical drawings, not known as engineering graphics, now known as engineering graphics, I'm sorry, in higher secondary exams. Studied in BIS Pilani for a year, during which time he was selected for the Bachelor's of Architecture program in the School of Planning and Architecture, New Delhi. He published his first book, Home Decoration Guide, at the age of 25. He was the first Indian architect who wrote a book on interior decoration in Hindi. Mr. J.R. Valla, president of the council, I think, written the preface in that book. And at the age of 26, he prepared his next book, 51 House Designs, where architect Kanvinde wrote the preface. Within years, his next book, Modern House Plans, co-authored by his architect wife, Mrs. Madhu Mohan, was published by Pustak Mahal. We all know Pustak Mahal. All these books were widely acclaimed by famous newspapers and magazines all over, including the Indian Architect. More than 200,000 of his books has been sold out. He has contributed articles on architecture, interiors, planning, and other socio-economic topics in various newspapers, magazines, and journals, including the Indian Express, Hindustan Times, and the likes. He has designed, decorated, supervised large number of showrooms, houses, factories. He is the founder director of the Academy of Interior Decoration, imparting knowledge of interior decoration through correspondence for more than 3 decades. He is an expert in preparing study material for design and architectural entrance exams, now providing guidance to the students aspiring for joining architecture and design courses. Architect Ashok Goel, with these words, I would ask you to enlighten us on the various aspects that you feel as a professional, as an architect who has entered this profession. We have our educational life, and after the educational life, we put our steps into this professional world. What do you feel with your experience and with the kind of work that you have been doing, and with the kind of challenges that you have been seeing all these years, all these decades rather? What advice, or rather what insights would you share with us regarding young professionals? मैं सबसे पहले तो सेन साहब की बात को एंडोर्स करूंगा कि आपके काम में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने ब्रीफ पकड़ लिया, एक बार आपने डॉटेड लाइन पे साइन कर दिया, एक बार आपने क्लाइंट से फीस तय कर ली, तो आपको उसको अपना सब कुछ देना है। सब कुछ देने का तात्पर्य ये कि आपको फीस कम मिली हो या ज़्यादा मिली हो, आपको वही काम करना है जो काम ज़्यादा फीस मिलने पे करते या जो काम बहुत ज़्यादा फीस मिलने पे करते। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। MC मेहता का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, MC मेहता साहब वो हस्ती हैं जिन्होंने ताजमहल का मामला अदालतों में उठाया और ये मांग की कि ताजमहल का सफ़ेद रंग काला होता जा रहा है और वहाँ मथुरा में रिफाइनरीज बंद हों, फैक्ट्रीज बंद हों और तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ वहाँ से हटाई जाएं। और इस तरह के ढेरों मामले एनवायरनमेंट के उन्होंने उठाए और उन्होंने ये बात कही कि हर व्यक्ति को साफ हवा और साफ पानी जरूर चाहिए। और तकरीबन जितने भी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स में ले गए, उन्होंने सारे केसेस जीते और जगह जगह इस मामले में सुधार हुए।
तो किसी व्यक्ति ने एमसी मेहता जी से पूछा कि आप इतने लर्नेड लॉयर हैं तो क्यों इस एक्टिविज्म में अपना समय खराब कर रहे हैं? आप तो एक हियरिंग के लाखों रुपए वसूल सकते थे। तो एमसी मेहता जी ने कहा कि मामला ग्रीड वर्सेस नीड्स का है। नीड्स हर व्यक्ति की उतनी ही है और ग्रीड की कोई सीमा नहीं। तो वही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है, आर्किटेक्चर प्रोफेशन पे भी लागू होती है कि आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप आनंद उठा सकते हैं तो आप एक चप्पल की दुकान को डिज़ाइन करने में भी आनंद उठा सकते हैं। अगर आपको आनंद उठाना नहीं आता तो आप एयरपोर्ट डिज़ाइन करेंगे तब भी आपको आनंद नहीं आएगा। तो एक तो बहुत ज़रूरी है कि जो 5 साल में आपने आर्किटेक्चर में पढ़ा या जो मेरे माता पिता ने संस्कार मुझे दे दिए, मैं उसको आगे बढ़ाऊँ। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर। उससे पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के मेंबर हैं। हम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के मेंबर नहीं हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मेंबर 50-55 होते हैं। हम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड हैं एंड वी आर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स। एक क्वेश्चन है हम लोग के मेंबर्स से कि इन द म्युनिसिपल एंड डेवलपमेंट ऑफिसेज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स every year they enroll new firms for building permission and other building related issues. Lots of firms run by junior engineers, then BEs, civil, and then even electrical engineers add up architectural word in their consultancy firm. These offices doesn't know about the rules regarding Architects Act, and so they issue trade licenses having all name under architectural consultancy firm. तो इस तरीके के जो issues है, whenever we come across this kind of issues, देखिए बड़ा स्पष्ट रूप से आर्किटेक्ट्स एक्ट में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो काउंसिल के रजिस्टर पे जिसका नाम नहीं है वो आर्किटेक्ट नहीं कहलाएगा। काउंसिल के रजिस्टर पे आपका नाम अंकित होने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो तय कर रखी हैं। अब बात आई उन लोगों की जो आर्किटेक्ट्स नहीं हैं और आर्किटेक्ट टाइटल का गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए आर्किटेक्ट्स एक्ट में क्लियर प्रोविजन है। आर्किटेक्ट्स एक्ट का सेक्शन 37 आर्किटेक्ट टाइटल को प्रोटेक्ट करता है, आर्किटेक्चरल सर्विसेज को नहीं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है आर्किटेक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन कोई भी इस तरीके का व्यक्ति, इस तरीके की फर्म अपने नाम के आगे, अपने लेटर पैड पे, अपनी फर्म के नाम के आगे आर्किटेक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। खुलेआम उल्लंघन इसलिए हो रहा है कि मैं और आप, हम लंबे समय से शांति से बैठे हैं। अब मैं तो शांति से बैठा नहीं हूँ। मैं तो तकरीबन 14-15 साल से लगातार जगह जगह आरटीआई लगा के इस तरह की जानकारी जुटा रहा हूँ। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में मैंने आरटीआई लगाई, वहाँ से जानकारी मांगी कि फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ आप लोगों ने क्या करा, कितनी आपके पास कंप्लेंट्स आई और उसके खिलाफ कितनों के खिलाफ आपने लीगल कार्रवाई करी, कितनों को जेल भिजवाया। उनकी जो आरटीआई की फीस है लगातार 2500-3000 रुपये मैंने जमा कराई। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने तकरीबन पिछले 7-8 साल में किसी फर्जी आर्किटेक्ट को जेल नहीं भिजवाया। उन्होंने उन लोगों को नोटिस सर्व करे, जिसका जो जवाब आ गया और उसके बाद वो शांति से बैठ गए। उससे पहले कुछ समय में कुछ आर्किटेक्ट्स पे इन्होंने मुकदमा करा और उसके बाद उस व्यक्ति को जो 500 रुपए की सजा होती है वो सजा हुई और वो मामला खत्म हो गया। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की जब नई टीम आई, हबीब खान साहब आए, उनसे मैं लगातार संपर्क में हूँ। इससे पहले विजय गर्ग जी थे, उनसे भी संपर्क में था। तो मेरी लगातार कोशिश ये थी कि फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ कंप्लेंट करने का तरीके को आप सरल करो। तो हबीब खान जी ने इस मामले में एक नई पहल की। अब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पे जाकर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्वैक के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकता है और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर उसको नोटिस सर्व करती है और उसके खिलाफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को कानूनी कार्रवाई करने का हक है। हाल ही में
2-3 दिन पहले काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर प्रेसिडेंट साहब ने मेरे को सूचित किया कि हमने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पे उन सारी लंबी चौड़ी लिस्ट डाल दी है कि कितनी हमारे पास ऑनलाइन कंप्लेंट आई, कितनी ऑफलाइन आई, हमने उनको कब नोटिस सर्व करा और नोटिस का क्या जवाब आया। उसमें मैंने अभी भी आपत्ति की है कि सिर्फ नोटिस सर्व करने से और उसका जवाब आने से हमारा काम खत्म नहीं होता। किसी को आपने जनवरी में नोटिस सर्व करा था, उसकी फरवरी में आपके पास जवाब आ गया, अब मई चल रहा है, तो उन लोगों के खिलाफ आप कड़ी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? दूसरी चीज, अधिकतर लोगों को यह नहीं मालूम है कि हमारी सभी संस्थाओं पे बहुत पैसा है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पे आप जाएं तो आपको पता चल जाएगा, काउंसिल पे ढेर सारा करोड़ों रुपए का सरप्लस फंड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की जानकारी अगर आप जुटाएं तो इनके पास भी सफिशिएंट फंड है। मैं इन सब लोगों से बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग चुप मत रहो, फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ मुकदमा करो, इनको जेल भेजो। जब तक इन लोगों में खौफ पैदा नहीं होगा, जब तक इन लोगों में डर पैदा नहीं होगा, जब तक ये लोग अपनी इस चीज को बंद नहीं करेंगे। देखिए, मैं 15 रुपए महीने में पढ़ाऊं, आज जो आर्किटेक्चर कॉलेज की फीस है 25,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीने से 50,000 रुपये महीने तक की फीस है। आप 5 साल में 4 से 5 लाख रुपए खर्च करते हो, तो आपके पेरेंट्स की एक आशाएं हैं, आपके परिवार की एक आशाएं हैं कि भाई अब आप आर्किटेक्ट बन गए, 3 साल की बीएससी होती थी, आपने 5 साल की पढ़ाई पूरी कर दी, अब क्या है आपके पास, क्या काम कर रहे हो? आपको 20,000 की नौकरी नहीं मिलती, 10,000 की नौकरी मिलती, प्रैक्टिस में आप जाते हो, तो आपको सामने मुकाबला किसका होता है? फर्जी आर्किटेक्ट से। फर्जी आर्किटेक्ट कहता है मैं अगरतला डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपका 600 रुपये नक्शा पास करा दूंगा। आपकी आंखें फटी रह जाती हैं, अरे मैं तो इसकी 60,000 रुपये फीस लेता है, 600 रुपये में करा रहा है। जो यंग जनरेशन है वो मेरी तरफ इस आशा से देखती है कि ये तो दाढ़ी वाला बाबा है, मेरी क्या मदद कर रहा है। उसको मेरे से सरमन नहीं चाहिए, उसको मेरे से प्रीचिंग नहीं चाहिए कि आप ईमानदारी बरतो, आप 500 रुपये में नक्शा मत बनाओ। मैं तो लोगों को कहता हूँ मुफ्त में नक्शा बनाओ, 2 लोगों को कहो मेरा जाए नक्शा ले जा, इसको अपने दोस्तों को बांट दे, पसंद आए तब तो मेरे पास आना। मेरी नक्शे वाली किताबों से लाखों लोगों ने अपने घर बना लिए। 40 रुपए की किताब, 51 नक्शे। मैं इसको बार बार नक्शा बोलता हूँ, आप उसको प्लान बोल दीजिए, हाउस मैप बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, एक आम आदमी के लिए वो नक्शा है। अगर उसको 75 पैसे में एक नक्शा मिल रहा है तो उस जमाने में आर्किटेक्ट की फीस 15,000 या 12,000 या 10,000 थी, क्यों देगा? वही बात आज लागू होती है। हम यंग ग्रेजुएट्स को सिखाते हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के रूल्स रेगुलेशन क्या है, अगर इतने साइज का प्लॉट है इससे कम में आपको पैसे नहीं लेने। फील्ड में लोग जाते हैं, वो कहते हैं मेरे से 700 रुपये में नक्शा ले ले, 2,000 रुपये में तेरा नक्शा मैं पास करा दूंगा। मैं कहता हूं कि आप इन फर्जी आर्किटेक्ट्स को उनके खेल में मात दो। अगर वो 2,000 रुपये में बिल्डिंग प्लान सेंक्शन करा सकता है किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से और उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो लानत है आपके ऊपर कि आपने 5 साल की डिग्री ली, आप 2,000 रुपये में नक्शा सेंक्शन करा के नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आप बैठे रहिए, मैं 60,000 से कम फीस नहीं लूंगा। आप 2,000 रुपये फीस लीजिए, 1 महीने में आपने 20 केसेस करे, 40,000 रुपये आ गए। कोई आर्किटेक्ट ऑफिस आपको 40,000 रुपये महीने की तनख्वाह नहीं देगा, लेकिन 40,000 रुपये आप जनरेट कर सकते हो अपनी शान से, अपनी आन बान से, अपने दफ्तर में बैठ के, जिसमें आप किसी की नौकरी नहीं बजा रहे हो, 8 घंटे की ड्यूटी नहीं बजा रहे हो, बाकी के 2 घंटे में आप नक्शा बनाते हो, 6 घंटे में आप गुलशन अंदा के उपन्यास पढ़ते हो बैठ के। तो यंग जनरेशन मेरे से ये जानना चाहती है, गोयल साहब आपकी 66 साल उम्र हो गई, आपने सर्वाइव कैसे करा? और हम सर्वाइवल के टिप्स नहीं बताते उसको। हम उसको कहते हैं नहीं, तेरे को प्रोफेशन की डिग्निटी नहीं गिरानी है। प्रोफेशन की डिग्निटी तो तभी गिर गई जब उसको कोई 10,000 रुपये की नौकरी नहीं दे रहा। प्रोफेशन की डिग्निटी तो तभी गिर गई जब क्लाइंट उसके पास नहीं जा रहे और फर्जी आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं, क्लाइंट सिविल इंजीनियर के पास जा रहे हैं। 20 लाख सिविल इंजीनियर्स आपकी फील्ड में घुसपैठ करके बैठे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। और सिविल इंजीनियर्स की एसोसिएशन जिसके 22 सेंटर्स हैं, वो इस बात को बार बार कह रही है कि अगर आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे रोक लग गई और सिविल इंजीनियर्स काम नहीं कर पाएंगे तो इन 20 लाख लोगों का क्या होगा? यानी उन 20 लाख लोगों के पास काम है फील्ड में। उन 20 लाख लोगों के पास काम फील्ड में है, तो 1 लाख आर्किटेक्ट्स के पास काम क्यों नहीं है? उन लोगों के पास काम इसलिए नहीं है कि वो अपनी फॉल्स प्राइड में बैठे हैं। मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं घटिया काम नहीं करूंगा। देखिए, कम पैसे में काम करना घटिया काम नहीं होता। हम फर्जी आर्किटेक्ट्स को कानूनी रूप से तो बाद में पीट के अलग करेंगे, हम उसको उसी के खेल में मात दे सकते हैं, उससे कम फीस में हम काम कर सकते हैं। जो सुविधाएं वो दे रहा है उससे ज़्यादा सुविधाएं मैं देता हूँ। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जो प्रोफेशन की निटी ग्रिटी है उसको अंडरस्टैंड कीजिए, जो मार्केट फोर्सेस हैं उसको अंडरस्टैंड कीजिए।
और अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। और ताकत बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है वो है पैसा। और पैसा आपका विरासत का मिला हुआ पैसा आपको मदद नहीं करेगा। जो पैसा आपने कमाया है, अपनी ईमानदारी से कमाया है, अपनी मेहनत करके कमाया है और प्रोफेशन से कमाया है, वही आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। इतनी मेरी उम्र हो गई, जो क्लाइंट मेरे दफ्तर में एक बार आ गया वो वापस नहीं गया। क्यों जाएगा वापस? मैंने क्या पढ़ा, क्या सीखा? मैं एसपीए का एलुमनी हूं, मैं कहता हूं मैं एसपीए से पढ़ा हूं। उसको क्या फर्क पड़ता है मैं कहां से पढ़ा हूं? उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि डीडीए ने मेरे प्लान पे अगर एक ऑब्जेक्शन लगा दिया तो बगैर रिश्वत दिए ऑब्जेक्शन दूर हो जाना चाहिए। उसको इस बात से मतलब है साइड पे अगर कोई पुलिस वाला आ गया और उससे पैसे मांग रहा है, उस पुलिस वाले से मैं निपटूं। मैं कहता हूं निपटूंगा ना मैं, आप क्यों चिंता करते हैं? कई मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसे हुआ, जेई एई उनसे अनाप शनाप पैसे मांगते थे कि जी आपको डी फॉर्म नहीं मिलेगा, आपको सी फॉर्म नहीं मिलेगा। मैंने उनको दिलवाए फ्री में। कितने केसेस में ऐसा हुआ, कोई ठेकेदार लेबर कोड में चला गया, क्लाइंट को धमकाया कि जी आपने 3 लाख रुपए देना है, नहीं तो हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। हमने उसको बचाया, हमने कहा हम तेरा एक पैसा नहीं खर्च होने देंगे। तो ये सारी निटी ग्रिटियाँ मैंने कहाँ सीखी? ये सारी निटी ग्रिटियाँ मेरे को लोगों ने सिखाई। उन लोगों ने सिखाई जिन लोगों के मैं संपर्क में आया। जब मैं संपर्क में कैसे आऊँगा लोगों के? जब मैं हर प्रोजेक्ट को ठुकरा रहा हूँ, हर क्लाइंट को मैं कह रहा हूँ नहीं 60,000 से कम नहीं लूँगा, 1 लाख रुपए से कम नहीं लूँगा। वो क्लाइंट कहते हैं 2,000 रुपये में काम हो रहा है गोयल साहब, आप 60,000 मांग रहे हो, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। ये फर्जी आर्किट क्यों पना पड़े हैं? 20 लाख सिविल इंजीनियर्स कैसे काम कर रहे हैं? आप कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट की बात करते हो, आप एथिक्स की बात करते हो। पीछे कई आर्किट्स को मैंने वेबिनार में बात करते हो सुना कि आप में पैशन होना चाहिए। अरे मैं आपके पैशन का हलवा बना के खाऊं? 50,000 रुपये महीने की फीस खर्च करी है आपके माँ बाप ने, 6 लाख रुपए 5 साल में खर्च कर दिए, दिन ना देखा रात नहीं देखी। आपके पिताजी आपके साथ बैठ के मॉडल बनवा रहे हैं, आपका छोटा भाई मॉडल पे पेड़ लगवा रहा है, और उसके बाद जब आप सड़क पे जाते हो तो आपको 10,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलती। With these few words, I thank you all once again, and I close this session with a lot of good wishes.